The first question of exercise 7.5 is find the integral of x upon x plus 1. Correct me if I'm wrong. The question at least. What's the question? X plus 1 into x plus 2. dx. कौन सा फॉर्म लगेगा भाई? चलो लेट्स डू इट. विच फॉर्म? सिंपल वाला, फर्स्ट वाला. x upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Find out the value of a and b. Should we do it directly? ax plus 2a plus bx plus b. थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. तो x इज इक्वल टू, ये x वाले, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. सो व्हाट यू गेट? यू कैन डू इट बाय एनी मेथड. एलिमिनेशन से भी कर सकते हो इसे. सो यू विल गेट सेम. You get minus a is equal to 1. a is equal to minus 1 मिल गया. सिर्फ सब्सटीट्यूशन, यहां पर भी सिर्फ सब्सटीट्यूशन से, ऐसा नहीं है. एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू क्या आ रही है? 2. आर यू गेटिंग दिस? a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 2. So integral of x upon x plus 1 into x plus 2 dx becomes minus 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 2 dx. इसका अलग से इंटीग्रल कर लो, इसका अलग से इंटीग्रल कर लो. So this is -1 log modulus of x plus 1 plus 2 log mod x plus 2 and plus c. फर्दर सिंप्लीफाई होगा, इसको स्क्वायर में चढ़ा दो और ये नेगेटिव है, सो इसको पहले माइनस लॉग x मॉड x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c. So अब माइनस नेगेटिव वाला, अब नाउ यू कैन सिंप्लीफाई. लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c. आर यू गेटिंग दिस? चलो, हाउ मेनी गॉट? How many of you got this? How many of you? Moving on to next question. Hello. 5 of you are there. Reply to karo. Okay, you got. ये तो इजी वाला था. चलो अभी थर्ड वाला करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. थ्री एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x minus 1, x minus 2 and x minus 3. What will it become? This is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. So चलो, what will it? इसको further करेंगे. So what you get? a किससे मल्टीप्लाई होगा, b किससे मल्टीप्लाई होगा और c किससे मल्टीप्लाई होगा. एंड दिस साइड इट इज 3x minus 1 only. So a will get multiplied with these two, x minus 2, x minus 3, plus b gets multiplied with x minus 1 and x minus 3.
plus c gets multiplied with x minus 1 and x minus 2. So what do you get? A x square minus 5x plus 6 plus b x square minus 4x plus 3 and c into x square minus 3x plus 2. Are you getting this? So you get minus x अगर कॉमन लेते हो तो 5a plus 4b plus 3c into x and then plus 6 plus 3 9 plus 2. सॉरी वो तो c के साथ है, नहीं हो सकता. 6a plus 3b plus 2c. Now equate 3x minus 1. So you get therefore a plus b plus c is equal to 0. You get minus 5a plus 4b plus 3c is equal to 3 and you get 6a plus 3b plus 2c is equal to negative 1. तो यहां पर से c की वैल्यू क्या मिलेगी? यू गेट c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी. किसी एक में रख दो. चलो सेकंड वाले में ही रख देते हैं. तो सेकंड वाला विल बिकम माइनस ऑफ 5a प्लस 4b एंड c की जगह minus a minus b. So this is equal to 3. So you get 5 minus 3, 2a and 4 minus 3 plus b into negative is equal to 3. So इसके ऊपर से क्या मिलेगा? 2a plus b is equal to negative 3 and b is equal to या फिर so b is equal to minus 2a minus 3. ये b की वैल्यू आ गई. अब put it in equation 3. इक्वेशन 3 में पुट कर दो. 6 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b की जगह 2c की जगह माइनस ए माइनस बी है, लेकिन b की जगह वापस आपको ये लिखना है. सो एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो प्लस 2a प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1. दिस इज इक्वल टू माइनस 1. आई नीड टू री राइट इट. एक मिनट. और ये यहां पर लिख देती हूँ. प्लस 2 टाइम्स c की जगह माइनस a एंड माइनस b की जगह 3. So now you simplify it. So you get 6a ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 6a माइनस 9 माइनस 2a प्लस 4a plus 6 is equal to negative 1. Plus 6a minus 6a gone. So you get 2a minus 3 दूसरी साइड जाएगा तो plus 3. So a is equal to 1. a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will become minus 5. Yes, minus 5. And c की वैल्यू plus 4. I hope you all got this.
अब a b और c की वैल्यू मिल गई, तो नाउ फाइंड आउट द इंटीग्रल. इंटीग्रल ऑफ 3x minus 1 whole divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a की वैल्यू 1 थी, फिर b की वैल्यू कितनी थी, -5 अपॉन x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2. यहां पर भी मैंने वो ही लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस, here also minus, and c's value I got 4, so plus 4 into, this is plus x minus 3 and dx अलग अलग निकाल लो सबका. So this you get log modulus of x minus 1 plus, sorry, minus 5 log modulus of x minus 2 plus 4 log modulus of x minus 3 and plus c. ये पावर्स में चले जाएंगे, बट इसको पावर, सी यू हैव टू ऑप्शन, पावर में लगा सकते हो लेकिन फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, सो यू कैन लीव इट टिल हियर ओनली, क्योंकि 3 है तो 3 में तो एज इट इज कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो यू कैन लीव टिल हियर. दिस इज योर आंसर. टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, आंसर पीछे से चेक कर लो. यही है, ओके ठीक है, चलो यही है तो वेरी गुड. चलो अभी कौन सा करेंगे, 6th या 7th डिसाइड करो, 6th या 7th. Question number 6 or 7, you tell me which one you want to do. एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है, एक प्रॉपर वाला है, एक इम्प्रॉपर वाला है. क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्प्रॉपर. सिक्स्थ करवाऊं, इम्प्रॉपर वाला है. ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x into 1 minus 2x. So if you open the bracket and try to multiply and you get it, you get x minus 2x square. See here it is improper fraction. ये improper fraction है. कैसे, x square minus 1, यहाँ से भी नीचे से भी माइनस साइन कॉमन ले लो. दोनों की डिग्री सेम, सेम मीन्स इम्प्रॉपर. तो क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा. यू विल हैव टू लॉन्ग डिवाइड. चलो लॉन्ग डिवीजन करो. व्हाट यू गेट, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस x एंड न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 1 ही है. सो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय हाफ. तो हाफ इंटू दिस, सो x स्क्वायर गॉन एंड हाफ इंटू x, सो प्लस हाफ x. सो व्हाट यू गेट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो उड़ गया, एंड माइनस 1 माइनस हाफ, सो यू गेट माइनस 3/2. x, सॉरी जस्ट 1 सेकंड, ये 1 है एंड ये दिस इज, तो इसके नीचे नहीं आएगा, दिस हैज टू बी सेपरेटली, प्लस हाफ x एंड सो यू गेट माइनस 1 एज इट इज एंड माइनस हाफ x एज इट इज. इस तरह से मिलेगा. सो आप इसे किस तरह लिख सकोगे, हाउ विल यू बी एबल टू राइट इट, यू विल बी एबल टू राइट इट एज हाफ प्लस -1 minus half into x अपॉन नीचे वाला 2x स्क्वायर माइनस x. अगर हाफ कॉमन ले लूं मैं इसमें से, इफ आई ट्राई टू टेक हाफ कॉमन, बिकॉज हाफ से बहुत ही डिफिकल्टी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 2 सो टेक हाफ कॉमन, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर से व्हाट विल दिस बिकम,
यहां से हाफ कॉमन लिया तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते, फिर हाफ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो यहां से हाफ कॉमन लिया तो ये कितना बच जाएगा, 1 में से हाफ गया, सो -1 एंड प्लस हाफ गॉन, -2 यू शुड गेट, ताकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, एंड -x होल डिवाइडेड बाय 2x² -x, and this is this. So half common ले लिया, you get 1 plus this. अब हो जाएगा, you can take माइनस साइन कॉमन, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले लो तो 2 plus x अपॉन 2x² minus x हो जाएगा। Now will you be able to do? अब प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, should we go further? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। Question number 9 we will be doing. Question 9 is a bit different. Three x plus 5 whole divided by x cube minus x² minus x plus 1. ये जो डेफिनेटली प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3, लेकिन यहाँ पर नीचे फॉर्म कुछ अलग दिख रहा है। सिर्फ नीचे वाले को सिंप्लीफाई अगर करो तो 3x plus 5 एज इट इज रहता है, ये क्या कॉमन हो जाएगा, x² अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पर मुझे x minus 1 मिलता है, और इनमें से अगर -1 कॉमन ले लो तो x minus 1 मिलता है। अब कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है, अब कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है, ये x² -1 a² minus b², तो a plus b, a minus b, ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 बार है ना, x minus 1 2 बार है, तो ये स्क्वायर वाला 3x plus 5 अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर एंड x plus 1. Now I think so you can do it. अब हो जाएगा, लंबा सा मेथड है, बट हैव पेशेंस, एंड एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा इस एक्सरसाइज से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चेक हो जाती है, एंड स्पेशली वो साइन वाला हमने किया, उसमें सब्स्टिट्यूशन भी चेक हो जाता है एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी चेक हो जाता है, दोनों चीजें चेक हो जाती है कि सब्स्टिट्यूशन आता है या नहीं आता है, वो भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। ठीक है, so I am giving you this exercise 7.5 as homework. ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई करोगे, जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए
टुमारो वील बी डूइंग दोज क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 देखो. क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन सब्स्टिट्यूशन भी आएगा. सी क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में अगेन सब्स्टिट्यूशन आएगा. एक्स स्क्वायर है, सो टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4 एंड इट इज इम्प्रॉपर ऑल्सो. ये इम्प्रॉपर भी है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. सो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन भी करना है, डिवाइड भी करना है, फिर ए बी की वैल्यू भी है और फिर लास्ट में आंसर आएगा. वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 21 देखो. एज इट इज उन्होंने हिंट देकर रखी है. ई रेस टू एक्स वाला जो वो एज इट इज ई रेस टू एक्स बहुत ही टेढ़ी खिचड़ी है. इसमें भी सब्स्टिट्यूशन आएगा. ई रेस टू एक्स को टी ले लोगे तो टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 आ जाएगा. फिर एक क्वेश्चन नंबर 21 करवा रही हूं मैं. ठीक है. वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 21 हियर. यहीं पर करवा रही हूं मैं क्योंकि इट्स अ बिट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 dx. ये तो dx के टर्म्स में होगा. ठीक है. एंड देन आई एम थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर देती हूँ सो वी हैव इनफ स्पेस. चलो इसको करना है तो सबसे पहला मैंने क्या किया. लेट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी. तो dt की इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx के टर्म्स में. ठीक है. सो वही रहने वाला है. dx इज इक्वल टू dt. ठीक है. तो e raised to x dx is equal to dt. तो therefore what is dx? dx is equal to dt upon e raised to x. अब यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में e raised to x तो है नहीं तो this is going to be dt upon t. ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा. इट इज गोइंग टू बिकम dt की dt upon t into t minus 1. So what you will get? You get integral of dt upon t square minus t. अब क्या करोगे. अब इस तरह से तो होने से रहा. यू आर स्टक हियर. है कुछ ऑप्शन. अभी आगे क्या करोगे. व्हाट विल यू डू. सो यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस. आप इस तरह से इसे नहीं कर पाओगे. आपको कुछ न्यूमरेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. एनी आइडिया. Denominator will remain as it is t minus 1. What will come in numerator? प्लस 1. 1 तो है ही बेटा. t प्लस 1 को मल्टीप्लाई t प्लस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा. और डिफिकल्टी. तो यहाँ पर 1 तो है ही. ऑलरेडी 1 इज देयर. हमें क्या करना है. प्लस t माइनस t करना है. फिर रीअरेंज करना है. अब इसे रीअरेंज करो. अब इसे रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा. ये
इसको अलग ले लो एंड ये जो माइनस है माइनस को ब्रैकेट में एंड t माइनस 1 कर दो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो वही आ जाएगा। ना इससे क्या फायदा हुआ, जब आप इसे स्प्लिट करोगे t अपॉन दिस, तो एक बार ये कट हो जाएगा, एक बार ये कट हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू स्प्लिट, यू कैन स्प्लिट t अपॉन t इंटू t माइनस 1 एंड dt माइनस ये क्या हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन t इंटू t माइनस 1 dt। ये और ये गया इधर, ये और ये गया, तो यहां पर भी लॉग मॉड आ जाएगा एंड यहां पर भी लॉग, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मॉड t माइनस 1 एंड यस माइनस लॉग मॉड t एंड प्लस c, लेकिन t की जगह वैल्यू लगाओगे वापस। हाँ, ले इसको भी आप लॉग मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 अपॉन t कर दो, फिर लास्ट में वैल्यू लगाओ t की जगह, नाउ यू पुट e रेज टू x माइनस 1 अपॉन e रेज टू x एंड प्लस 1, हो गया ये। सो दिस स्टेप यू नीड टू रिमेंबर, ये और किसी तरह से नहीं होगा। क्यों, होल स्क्वायर कहाँ है, e रेज टू x है। हाँ, so this was question number 21, थोड़ा सा टिपिकल है। तो यहां पर देखो कितनी चीजें लिखी, यहां पर पहला चीज सब्स्टिट्यूशन लगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद यहां पर इसको प्लस माइनस किया, कहने को ये सब कहां पर है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले में, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कम लग रहा है यहां पर। इसको आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, सो नाउ व्हाट यू कैन डू, अगर इस तरह से नहीं करना है इट बिकम्स इजी, लेकिन अगर इस तरह से नहीं करना है देन सब्स्टिट्यूट a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, ऐसे करना है। होगा क्या इससे, चेक करो, a इंटू टी माइनस, नहीं टेक्स्ट बुक वालों ने नेम में मिस्टेक नहीं की है, पर्पसफुली देते हैं वो लोग, at माइनस a प्लस bt, तो इस पर से क्या होता है a प्लस b टाइम्स t माइनस a, ये अलग, इज इक्वल टू, यहां पर कुछ नहीं है 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई, ठीक है, a की वैल्यू -1 एंड a प्लस b 0 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a इज -1, व्हाट विल बी b, +1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू ट्राई टू पुट इट, इसको पुट करने की कोशिश करो, क्या इस मेथड से हो रहा है, a की जगह -1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन दिस, तो भी आ जा रहा है, आ रहा है, इस तरह से भी आ रहा है, अगर आप इस तरह से करोगे तो भी हो जाएगा। सो दिस इज बिकमिंग 1 अपॉन टी, सॉरी -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, देन यू कैन पुट, वही लॉग वाला आ जाएगा खेल। आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर याद नहीं रखना है +-1 देन यू डू इट दिस वे, तो हो जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आ गई। सो वी स्टॉप हियर टुडे। ठीक है, आज थोड़ा लंबा सेशन खींचा मैंने, बट इट वाज फ्रूटफुल। चलो वी स्टॉप हियर, बाय बाय।